Class 11 Physics Chapter 2 Motion in a Straight Line. In this chapter you will study some definition terms, basically speed, rate of change of distance is known as speed, velocity, rate of change of displacement is known as velocity, acceleration, rate of change of velocity is known as acceleration. These three terms you will study. With this also, first you can see speed. Speed you can study uniform speed, non-uniform speed, average speed, instantaneous speed. In the same way for velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity, instantaneous velocity. In the same way for acceleration also, acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration. So try to understand the terms. Speed you can try to understand. The speed that you are getting here, point A and B. A body starts from point A to B. It covers distance S in time T. तो क्या हो गया? S distance कितना टाइम में? T टाइम में. By unity method, unit distance कितना? S by T. This S by T means distance in unit time covered by body is known as speed. Yeah, you can define this. V is equal to distance by time. Speed of a body may be defined as the ratio of distance to the time, or this you can say rate of change of. The rate of change of distance of a body is known as speed, rate of change of distance. Now here we are considering origin. ये तो पढ़ा है क्लास 9th में. अब origin, here you will study take origin. Distance कहाँ मेजर करते हैं? Distance there should be a origin. From this origin we measure distance. Suppose करो O point क्या है? Origin है, starting point, और body starts from point A. Time कितना है? T1. Distance कितना है? S1. Position from origin. अब T2 टाइम में बॉडी कहाँ आ गया? B पॉइंट पर. कितना पोजीशन हो गया? डिस्टेंस S2. एक्चुअली डिस्टेंस कितना कवर किया गया? ये डिस्टेंस ट्रेवल किया गया. ये डिस्टेंस, ये टाइम कितना हो गया? T2 माइनस T1. डिस्टेंस कितना हो गया? S2 माइनस S1. S2 माइनस S1. एक्चुअली ये टाइम हो गया. इस टाइम में कितना डिस्टेंस? इतना. इस तरह से कर सकते हो. इन दिस टाइम this distance is covered by body. Unity method, in unit time S2 minus S1 by T2 minus T2. ये हमारा हो गया speed. Speed is equal to, you can say, S2 minus S1 by T2 minus T1. This is the speed you can say. और थोड़ा सा कर सकते हो इसको, change in speed, change in distance means delta S कर सकते हो, और delta T time you can say. या और थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो ds बाय dt. यू कैन कैलकुलस मेथड से स्पीड इज इक्वल टू ds बाय dt. dt क्या हो? स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस ds कवर किया गया. तो स्पीड जो है, स्पीड क्या हो गया? ये स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी. तो क्या हो गया? 40 किलोमीटर इन 1 आवर. इधर डायरेक्शन 40 किलोमीटर 1 आवर, इधर 40 किलो 1 आवर, 40 किलो 1 आवर मीन्स डायरेक्शन इज नॉट फिक्स्ड. 40 किलोमीटर इन 1 आवर एनी डायरेक्शन. तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. ये 40 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैग्नीट्यूड है. इट हैज नो एनी डायरेक्शन. और इसका एसआई यूनिट कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड. दूसरा है यूनिफॉर्म स्पीड. अब जो भी बॉडी है, सपोज ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. जितना व्हीकल्स हैं, जिस टाइम वॉकिंग या तुम लोग वॉक कर रहे हो रोड पर, या बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, प्लेन चल रही है, ये सब कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है. ए बॉडी इज मूविंग
a body is said to be in non-uniform speed if it covers equal distance in unequal interval of time. Or average speed, total distance by total time taken. How will you define average speed? Average speed of a body may be defined as the ratio of total distance to the total time taken. Instantaneous speed, स्पीडोमीटर जो है क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड. The speed of a body at any instant is known as instantaneous speed. Instantaneous speed, the speed of a body at any instant is known as instantaneous speed. इसको instantaneous speed को इस तरह से भी समझ सकते हो. कैलकुलस की लैंग्वेज लिमिट, v is equal to limit lt. lt you can say limit lt और delta t tends to 0 nearly to delta x या s भी कर सकते हो delta t, या इसको कर सकते हो dx by dt. इस तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड लिमिट lt, इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा टी टाइम क्या है? टाइम टेंड्स टू 0. व्हीकल पे चल रहे हो, कार में चल रहे हो और देखोगे स्पीडोमीटर में स्पीड, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम. अब वो टाइम क्या हो गया? डेल्टा टी. डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ये डेल्टा टी जो है टेंड्स टू 0, गोइंग टू बी 0, नियरली टू 0, नॉट इक्वल टू 0. फ्रैक्शन ऑफ टाइम लेगा टू सी द स्पीड ऑफ कार. Instantaneous speed of a vehicle at any instant is known as instantaneous speed. इसको ये लिमिट किसके लिए? डेल्टा टी के लिए. ये डेल्टा टी लिमिट जो है ये टाइम कैसा है? बहुत छोटा टाइम है. बहुत छोटा मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, नियरली टू 0, गोइंग टू बी 0. 0 नहीं, गोइंग टू बी नियरली 0, बहुत छोटा टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू कैन से. वेलोसिटी, the rate of change of displacement of a body is known as velocity. velocity क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी वेक्टर साइन है, एरो मार्क v और डिस्प्लेसमेंट एरो मार्क. तो क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी. और यू कैन से दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. और दूसरे ढंग से डिफाइन कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी. वेलोसिटी हैज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. वेलोसिटी जस्ट यू कैन कंसीडर v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट. इट इज वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स. Magnitude, this is your magnitude, 40 kilometer. This gives vector quantity has two things, velocity, two things, magnitude and direction. This 40 kilometer per hour, this is magnitude, and towards east, towards north, towards south, this will give direction. The velocity in 40 kilometer per hour, 40 kilometer in 1 hour towards east. So it gives direction, magnitude and direction. Speed में ऐसा नहीं है. So uniform velocity, a body is said to be in uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time. दूसरा कंसीडर कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. A body is said to be in non-uniform velocity if it covers equal displacement in unequal interval of time. दूसरा कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. उसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो v एरो मार्क लिमिट lt, लिमिट शॉर्ट में lt लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बाय डेल्टा टी. इसको लिख सकते हो v एरो मार्क इज इक्वल टू dx बाय dt. ये वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू dx बाय dt. नाउ इन द सेम वे यू कैन स्टडी
एक्सेलेरेशन ऑल्सो।